Hello, lovely people. Good wishes to all. So, today I welcome you to another lecture of determinants. In the previous lecture, we started our discussion on determinants, where we discussed about how to evaluate the determinants of order 1 and order 2. In this lecture, we'll find out how we will evaluate the determinants of order 3 and higher, and we'll discuss about the famous Sarrus rule. So, without further delay, let's get started. Till now, if you have any query, any doubt, or any suggestion related to what you have studied till now, let me know in the comment section. So, in the previous lecture, we started off with minors and cofactors. Let's recall them first. What is a minor? Minor is found out for an element. Cofactor is also found out for an element. So each and every element of a determinant, it has some or the other minor and cofactor also. So what is minor? It is basically a determinant which is obtained when we delete one row and one column which contains the corresponding element. The minor of the element Aij, it is denoted by capital Mij, and the cofactor of Aij, we find it out by multiplying this minor with the factor minus 1 raised to power I plus j. Also, we discussed that the row index and column index, when we sum them and if we get the summation as an even number, then the cofactor and minor both are equal. But when I plus j is odd, then we get the cofactor as the negative of minor. This was how we found out minors and cofactors. Now, in terms of minors and cofactors, we'll be dealing up with the determinant of order 3. In cofactors, we studied here that we have to find out this factor always, minus 1 raised to power I plus j. Here is a short trick to remember how to determine the sign of cofactor, because we know that minor and cofactor, they differ by the sign only. Sometimes the cofactor is positive of minor and sometimes the cofactor is negative of minor. Then how to determine very easily and quickly that whether these two are equal or they are negative of each other? We know that when we evaluate this factor minus 1 raised to power I plus j, we either get a plus sign or a minus sign. For which element we'll be getting plus sign and for which element we'll be getting minus sign? To find out that very easily and quickly, what we do is, if we have a determinant of order 3 say, we write a checkbox here which contains these signs as this. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक डिटर्मिनेंट जो होता है, किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ साइंस एसोसिएट करते हैं. कैसे? प्लस साइन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रो को हम प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो को नेगेटिव साइन से, थर्ड रो को प्लस साइन से, एंड सो ऑन. एंड हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इस तरह से मूव ऑन करेंगे रो वाइज, इवन कॉलम वाइज भी एंड रो वाइज भी. फर्स्ट प्लस, देन माइनस, देन प्लस, अप टू सो ऑन. जिस भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के साथ हम एक साइन एसोसिएट कर देंगे. तो जब भी हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो उस टाइम पे हमें इस फैक्टर को इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है. हम बस सिंपली ये चेकबॉक्स बनाएंगे और उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग साइन देख लेंगे. ठीक है, तो उसी साइन को हम माइनर के साथ यूज करेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लाइक दिस, तो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिख लिए. अब इन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक माइनर एंड एक कोफैक्टर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एलिमेंट A11, तो इस एलिमेंट A11 का जो माइनर होगा उसे हम डिनोट करेंगे M11 से, एंड इट्स कोफैक्टर विल बी डिनोटेड बाय A11. अब इस A11 का जो साइन है, ईदर इट विल बी प्लस M11 और इट विल बी माइनस M11. उसे फाइंड आउट करने के लिए हम चेकबॉक्स का यूज करेंगे. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 ऑर्डर का एक चेकबॉक्स बना लेंगे. प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह का एक चेकबॉक्स बन गया ऑर्डर 3 का. तो फर्स्ट एलिमेंट A11 इस पोजीशन पे है और चेकबॉक्स में इसी पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइन होगा, दैट विल बी द कोफैक्टर. दैट मीन्स कि A11 यहाँ पर प्लस M11 होगा, यानी कि A11 की पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइन हमें चेकबॉक्स में मिलेगा, वही साइन हम माइनर के साथ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली कोफैक्टर आ जाएगा.
इस केस में वी नीड नॉट इवेलुएट दिस फैक्टर। सिमिलरली अगर मैं इस A22 एलिमेंट की बात करूं, इस A22 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास चेकबॉक्स में ये साइन है, तो मैं क्या करूंगी, द कोफैक्टर ऑफ दिस A22 एलिमेंट विल बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ दिस एलिमेंट M22। तो हमें डायरेक्टली यहाँ से चेकबॉक्स की हेल्प से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मिल जाएगा कोफैक्टर के लिए। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ माइनर फाइंड आउट करने की जरूरत है, कोफैक्टर हम डायरेक्टली इस चेकबॉक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक ऑफ दिस एलिमेंट A23, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पोजीशन होगी चेकबॉक्स में, दिस इज द पोजीशन, इस पोजीशन पे हमें माइनस साइन मिल रहा है, तो 2-3 एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ इट्स माइनर। सिमिलरली अगर A31 एलिमेंट की बात करें, तो A31 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसी पोजीशन पे चेकबॉक्स में प्लस साइन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A31 एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ M31। तो इसी तरह से हर एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट इवेलुएटिंग दिस फैक्टर -1⁻⁻j। Now we move towards to find out the determinant of order n। अगर हमारे पास n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। इफ द मैट्रिक्स इज हैविंग ऑर्डर 3 और हायर, तो उस केस में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले उस डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स A लाइक दिस। इस तरह की कोई मैट्रिक्स है, एक जनरल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें कोई भी एक रो चूज करनी पड़ेगी या कोई भी एक कॉलम चूज कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने फर्स्ट रो चूज की, मैंने ये चूज किया कि मैं फर्स्ट रो की हेल्प से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी। तो फर्स्ट रो जो है A की दैट इज A11, A12 एंड A13। इस फर्स्ट रो की हेल्प से विच इज कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, इस रो की हेल्प से मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, हर एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, बिकॉज फर्स्ट रो इज हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट एलिमेंट उसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, देन मैंने सेकेंड एलिमेंट लिया, उस सेकेंड एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो थर्ड एलिमेंट है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव 3 प्रोडक्ट्स हियर, और इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट यूजिंग द फर्स्ट रो। इसी तरह से हम कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो चूज कर सकते हैं, उसी सेम रो या सेम कॉलम से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, हर केस में डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक न्यू रो या न्यू कॉलम चूज करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे डिटर्मिनेंट लिखना हो इन जनरल, तो मैं कैसे लिखूंगी, लेट मी चूज दिस कॉलम। मैंने डिसाइड किया कि सेकेंड कॉलम की हेल्प से मैं A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी। तो व्हाट इज द सेकेंड कॉलम, लेट मी राइट इट, A12, A22 एंड A32। दिस इज द सेकेंड कॉलम, एंड इस कॉलम की हेल्प से मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लूंगी A12, उसको A12 एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, देन मैं A22 एलिमेंट लूंगी, A22 एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, देन द थर्ड एलिमेंट इज A32, उसको मैं A32 एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स आए, उन 3 प्रोडक्ट्स को मुझे ऐड करना है, देन आई विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। यहाँ पे तो हमने फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आया, सेकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास ये आया। दोनों केसेस से जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा सेम ही आएगा।
अब यहाँ पर हमने 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ऐसे ही हम लोग 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, जितने भी हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं, इसी मेथड से हम लोग उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। बस वहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑब्टेन होंगे सभी को ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो का यूज किया। तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट दिस इज एक्सपैंडेड अलोंग R1। जब इस तरह से हम लिखते हैं कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एक्सपैंडेड अलोंग R1, दैट मीन्स कि हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो यूज किया है। सेकेंड केस में हमने क्या किया था, हमने सेकेंड कॉलम का यूज किया था डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो उस केस में हम ये लिखेंगे कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एक्सपैंडेड अलोंग सेकेंड कॉलम। तो जिस भी कॉलम या जिस भी रो के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो उस रो को हम लोग इस तरह से या उस कॉलम को हम इस तरह से मेंशन कर देंगे दैट दिस determinant of matrix is expanded along the corresponding row or column. To understand how to evaluate the determinants of order 3 or higher, let's take some of the examples. So our first example is we have a determinant, which is like this, and this is a order 3 determinant. इस order 3 के determinant को evaluate करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए किस रो या किस कॉलम के along हमें determinant find out करना है। तो यहाँ पर हम खुद चूज कर लेते हैं। लेट्स से हम थर्ड रो के along determinant को expand करेंगे, that means we will use only one row, that is the third row. सिर्फ एक रो या एक कॉलम के corresponding ही हम determinant evaluate करेंगे। तो third row of A determinant is like this, 4, 2 and 1, because this is the determinant of order 3. That is why we will have 3 elements in each row and each column. तो यहाँ पर हमने थर्ड रो लिखी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड नाउ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट, देन वी विल टेक अप द सेकेंड एलिमेंट विच इज 2, उसे हम 2 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2, देन वी विल टेक अप द थर्ड एलिमेंट इज 1, देन 1 को हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आए, उन सभी प्रोडक्ट्स को हमें एड अप कर देना है एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। So here we have to find out the cofactor of 4, cofactor of 2 and cofactor of 1. कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनर फाइंड आउट करना होगा और उसके साथ एक साइन एसोसिएट करना होगा। तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन निकालने के लिए हमने एक चेकबॉक्स की हेल्प ली थी, बिकॉज ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर ऑर्डर 3 का ही चेकबॉक्स हम बनाएंगे। The checkbox will start from plus sign, plus minus plus, second row would be minus plus minus and third row would be plus minus plus. तो इस तरह से हमने एक चेकबॉक्स बनाया और इसी चेकबॉक्स की हेल्प से हमें कोफैक्टर का साइन पता चलेगा। तो कोफैक्टर ऑफ 4 की अगर हम बात करें तो 4 जो है यहाँ पर लाई करता है, तो इसी पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो साइन मिल रहा है दैट इज प्लस। तो यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ 4 this will have the sign plus. Cofactor of 4 will be equal to positive sign multiplied by the minor of element 4, which I am representing here with M4. Similarly, cofactor of 2 find out करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट 2 इस पोजीशन पर लाई कर रहा है A32 पोजीशन पर, और A32 पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो साइन मिल रहा है दैट इज नेगेटिव। तो cofactor of 2 would be minus multiplied by the minor of element 2. Similarly, the third element is 1. तो इस पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो साइन मिल रहा है दैट इज प्लस। तो cofactor of 1 that will be equal to plus into the minor of this element 1, which I am representing as M1. तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो गया, हमें अब सिर्फ M4, M2 and M1 find out करना है। The determinant of A is given like this: 6, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 2 and 1। यहाँ पर हमें सबसे पहले माइनर ऑफ 4 निकालना है।
द एलिमेंट 4 इज हियर। तो माइनर ऑफ 4 फाइंड आउट करने के लिए 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम है एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो है उन्हें डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मिलेगा दैट इज 2 3 3 5। दिस डिटर्मिनेंट विल बी द माइनर ऑफ 4। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम इवेलुएट करें तो दिस विल कम आउट टू बी 2 into 5 minus 3 into 3, that means this will be 1. So minor of 4 is 1. Similarly, we will find out the minor of element 2 and element 1. The element 2 is lying here. तो इस element 2 के corresponding जो भी कॉलम है and जो भी रो है, जिस भी रो में जिस भी कॉलम में 2 एलिमेंट लाई करता है उन्हें हम डिलीट कर देंगे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में से, एंड देन वी विल गेट द डिटर्मिनेंट लाइक दिस which is 6 3 2 and 5. This determinant is the minor of element 2. इसे अगर हम evaluate करें तो this will come out to be 6 into 5 minus 2 into 3. So the minor of 2 will be 30 minus 6, that is 24. Similarly, we will find out the minor of element 1. The element 1 is lying in the third column and third row. तो हम क्या करेंगे, एक determinant में से third row and this third column we will delete it and we will get a determinant like this 6 2 2 3. इस determinant को evaluate करेंगे तो this will come out to be the minor of element 1 and this will be 6 into 3 minus 2 into 2. That means m1 will be 18 minus 4. This is 14. अब यहाँ पर माइनर्स फाइंड आउट करते टाइम हमने साइन यूज नहीं किया, तो m4 जो माइनर है दैट इज 1, उसके साथ हमें प्लस साइन एसोसिएट करना है एंड दिस 24 इट विल हैव माइनस साइन। अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे तो हमारे पास कोफैक्टर मिलेगा एंड दिस विल बी प्लस। तो +1 -24 एंड +14, दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स 4 2 and 1। अब यहाँ पर द डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी 4 multiplied by the cofactor of 4 that is +1. We will add it with the element 2 multiplied with the cofactor of 2 that is -24 and then is added with 1 multiplied with the cofactor of 1 that is +14. This will come out to be 4 minus 48 plus 14. This will come out to be -30 and this -30 is the determinant of A. इस तरह से हमें ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर हायर के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने रो चूज की कि हम थर्ड रो के अलोंग डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे एंड उसके बाद हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया। उसके बाद हमने सिर्फ कोफैक्टर्स निकाले एलिमेंट्स के एंड देन वी गॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज -30। Let's move to the next example. The next example is like this. यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, डिटर्मिनेंट b is of order 3. तो उसके लिए हमें बोला गया है कि हमें सेकेंड रो की हेल्प से डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है एंड देन वी हैव टू यूज द थर्ड कॉलम टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट b. तो यहाँ पर स्पेसिफाइड है तो हम यहाँ पर सिर्फ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम की हेल्प से डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें सेकेंड रो का यूज करना है। The second row is 3, 5 and -1. The determinant of b using the second row, this will be element 3 multiplied by the cofactor of this element 3. The second element is 5. We will multiply it with its cofactor of 5. And then we have the element -1. We will multiply it with the cofactor of -1. And ये जो 3 products हमारे पास आए उन सभी को हम add कर देंगे, then we will get the determinant of b using the second row. अब हमें सिर्फ कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 5 एंड कोफैक्टर ऑफ -1 फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले माइनर्स फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल यूज द चेक बॉक्स टू फाइंड आउट द साइन ऑफ कोफैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 1 0 4 3 5 -1 0 1 and 2. First of all, we'll find out the cofactor of element 3 and this element 3 lies in the second row and first column. हम क्या करेंगे, b के determinant में से the second row and first column we will eliminate this. तो हमारे पास एक new determinant आएगा, this will be 0 4 1 2 and this determinant will give us the minor of element 3. Let's we represent it with m3. तो यहाँ पर m3 क्या आ गया, 0 -4 -4. m3 is equal to -4. Now we will find out the cofactor of element 5.
The element 5 is lying in the second row and second column. तो हम B के determinant में से we will eliminate the second column and second row. तो उस हिसाब से हमारे पास एक determinant आया 1402. This determinant will give us the minor of element 5. Let me represent it with M5. तो यहाँ पर M5, what is M5? This would be 2 minus 0, that is 2. Similarly, we will find out the cofactor of -1. The element -1 lies in the second row and third column. तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में से जो सेकेंड रो है and the third column, we will eliminate this and then we will get a determinant like this 1001. This determinant is the minor of element -1. Let me represent it with -1. तो यहाँ पर what is m1, sorry m-1, this will be 1. माइनस तो फाइंड आउट कर लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द चेक बॉक्स. नाउ हियर द डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 3, तो उसके लिए हम 3 ऑर्डर का चेक बॉक्स फाइंड आउट करेंगे. चेक बॉक्स विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस एंड दिस विल बी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पर हमने सेकेंड रो का यूज किया, तो वी विल यूज द सेकेंड रो ऑफ दिस चेक बॉक्स टू फाइंड आउट द साइन ऑफ कोफैक्टर. हियर we have the element 3. इस element 3 के corresponding हमारे पास जो sign आ रहा है that is minus. तो इसका मतलब जो cofactor होगा 3 का, if we represented with a3, so this will be negative of minor of 3. Similarly, the element 5 is here. element 5 के corresponding जो sign हमें मिल रहा है that is plus. So that is why the cofactor of element 5 would be positive of minor of 5. Similarly, यहाँ पर third element is the -1. तो -1 के corresponding हमें जो sign मिल रहा है that is minus. So the cofactor of -1 if we represented with a-1, this will be negative of minor of element -1. So the determinant of B using the second row, this would be 3 multiplied by cofactor of 3. Cofactor of 3 is negative of minor of 3. Minor of 3 we have find out. This is -4 plus 5 into cofactor of 5, that is plus into minor of 5. Minor of 5 is 2. Then we will add it with -1 multiplied by its cofactor. Cofactor of -1 is minus multiplied with minor of 1, that is 1. तो इसे हमें evaluate करना है and then we will get the determinant of B as 23. The determinant of B using the second row we found out is 23. Let's see whether the determinant which we found out with the row second comes out to be same as that we found with the third column or not. What is the third column of determinant B? तो B का जो third column है that is 4 minus 1 and 2. So the determinant of B using the third column, this will come out to be first element 4 multiplied by its cofactor, that is A4. Then it is added with next element -1 multiplied with its cofactor, which I am representing as a-1. We will add up with the third element, which is 2 multiplied by its cofactor, which I am representing with a2. First of all, we'll find out the minors and then we will find out the signs of cofactor. We have the determinant as 1, 0, 4, e5 minus 1, 0, 1, 2. Now we have to find out the minors corresponding to the element 4, -1 and 2. Let's take up the element 4 first. This element 4, it lies in the first row and third column. तो हम क्या करेंगे, original determinant से first row and the third column we will eliminate this and we will get a determinant like this 3501. This determinant is the minor of element 4, which I am representing as M4. So what we get here is M4 is equal to 3 minus 0, that is 3. Now we take up the next element, that is -1. This -1 element, it lies in the second row and third column. So what we will do, we will delete the second row and the third column from the original determinant B. So we will get a determinant 1001 like this, and this determinant is the minor of element -1. So what we get here is m-1 is equal to 1. Now we move towards the third element, which is 2. So this element 2, it lies in the third row and third column. So we will delete the
third row and the third column from the original determinant, and we'll get a new determinant which is like this 1035, and this determinant is the minor of element 2, which I am representing as M2. So we get here M2 as 5. After finding out the minors of each element of third column, what we have to find out? Its cofactors. So for cofactor, we will use the checkbox because it is the determinant of order 3. So we will use the checkbox of order 3. So it will start from plus sign, that plus minus plus, minus plus minus, and the third row will be plus minus plus. Now this element 4, corresponding to this 4 element, we have the sign plus. So the cofactor of 4 will be A4 is equal to plus M4, and this M4 is 3, so A4 we get as plus 3. Now the next element is minus 1. So corresponding to the position of minus 1, we are having this sign minus. So the cofactor of minus 1 would be negative of minor of this element. So this will be negative of 1. Now the next and the last element is 2. Corresponding to position 2, we are having the sign plus. So that is why the cofactor of this element 2 would be plus into minor of element 2, and this will be 5. Now putting all of these values in this equation of B determinant, we will get B determinant as 4 multiplied by A4, that is 3, then minus 1 multiplied with the minus 1, and then 2 multiplied with the 5. After solving this, we will be getting 23. So here we found out that the determinant which we have solved using the second row and the third column, that is the same. तो यहाँ से ये चीज भी प्रूव हो गई कि किसी भी रो किसी भी कॉलम से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, then we will get the same answer in every case. So this was how we will find out the determinant of order 3. Now let's move to the determinant of higher orders. ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के लिए जिस तरह से हमने काम किया, उसी मेथड से हम ऑर्डर 4 का भी डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे. So for that we have another example, that is we have the determinant A which is of order 4 and we have to evaluate this, we have to expand this. यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी रो से इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे. लेट्स टेक अप द फर्स्ट रो इटसेल्फ. हम फर्स्ट रो की हेल्प से इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे. So the first row of A is 0, 1, 2 and 3. The determinant of A using the first row, this will be first element of first row multiplied with its cofactor. Let the cofactor of A be A0. Then we will use the second element multiplied with its cofactor A1. Then the third element we will multiply it with its cofactor A2, and the last element is 3, we will multiply it with the cofactor A3, and we have all these products, we will add them and we will get the determinant A. So our work is to find out the cofactors A0, A1, A2 and A3. So let's find it out. But before finding out that, we will use the checkbox to know what will be the sign of A0, A1, A2 and A3. This is the determinant of order 4. So we will be using the checkbox of order 4 itself. This checkbox will start up with the plus sign, plus minus plus minus. Second row would be minus plus minus plus. Third row would again start with plus, and the fourth row will start with the minus, like this. This is the checkbox. The first element is 0. Corresponding to this element, we are having the sign plus. So this means the cofactor of 0 would be plus of minor of 0. The next element is 1. Corresponding to the position of 1, we are having this sign minus. So the cofactor of 1, this will be minus of minor of 1. Now we have the third element 2. Corresponding to its position, we are having the sign plus. So the cofactor of 2 would be plus of minor of 2. And the last element is 3. Corresponding to this, we have the minus sign. So the cofactor of 3 would be minus of M3. Now we have to find out these minors, M0, M1, M2 and M3. Now we have to find the minors
M0, M1, M2 and M3. For first minor M0, what we will do is, we will first of all locate this element. This is the element 0 which lies in first row and first column. So what we will do is, we will delete the first row and the first column from the original determinant, and then we will be left with the determinant 0, 2, 0, 0, 1, 3, 2, 1, 0. This determinant is the minor of element 0. Now we have to find this. The minor of element 0 is again a determinant of order 3. So for evaluating this, let's take up the first column. Let's decide that we will use the first column to find out this determinant. So the determinant, that means M0, this will be 0 multiplied by cofactor of 0, then again 0 multiplied by its cofactor A0 dash, and then 2 multiplied by its cofactor A2. Now this two terms will become 0 and we will be left with 2 into cofactor of A2. This element 2 is the A13 element, and the factor minus 1 raised to power I plus j will become minus 1 raised to power 1 plus 3, that will be 1. So the cofactor of this element and the minor of this element will be the same. So this will be 2 multiplied by its minor. Now to find out the minor of element 2, what I will do is, the 2 element, it lies in the third row and first column. So I will delete the third row and the first column from this determinant, and I will be getting whole of this determinant 2013. This determinant is like 2013. I'm going to evaluate it. This will come out to be 6, and this will be 2 into M2 is 6, and this is 12. So we get here M0 as 12, which is same as the cofactor of element 0, that is A0. Now we move towards to find out the minor of element 1 here. First of all, we will locate this. This element 1 lies here, and this lies in the first row and second column. So we will delete the first row and the second column, and we will be getting another determinant, that is 1, 2, 0, 2, 1, 3 and 1, 1, 0, which is made up from the remaining elements. So this determinant will be the minor of element 1. Now this is the determinant of order 3, and to find out the determinant of order 3, first we have to choose a column or a row. So let us choose this column 3 because it is having 2 zeros. So we have chosen this. The calculation will be easy. M1 will be equal to 0 multiplied by the cofactor of this 0, and then 3 multiplied by the cofactor of 3, and then added with 0 multiplied by its cofactor, let it be A0 dash. Now these two terms, 0 into A0, 0 into A0 dash, this will be 0 and we will be left with 3 into A3. Now we have to find out this A3. Now the element is 3 and it is the A23 element of the determinant. For this, the factor minus 1 raised to power I plus j, this will become minus 1 to the power 2 plus 3, and this will come out to be minus 1. So the cofactor of this element 3 will be negative of the minor of element 3. Now we have to find out the minor of this element 3. For this, the element 3 lies in the second row and the third column. So we will delete the second row and the third column from this, and from here we will be getting another determinant, which is 1, 2, 1, 1. And this determinant will be the minor of element 3. So the M3 will be 1 minus 2. This will be minus 1. So from here, the cofactor of 3 would be minus 1 into minus 1. This will be 1. So here we have written this down. A3 is equal to 1. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो भी माइनर्स आते हैं, दीज आर ऑफ द ऑर्डर 3. तो ऑर्डर 3 के माइनर्स अगर हमें फाइंड आउट करने आते हैं, देन वी कैन सॉल्व एनी ऑर्डर डिटर्मिनेंट. So let's move towards to find out the minor M2. Now first of all, we will locate this two element because we are using the first row. So this is the element 2, and to find its minor, we will delete the first row and the third column because this two element lies in first row and third column.
After removing this, we will be getting another determinant from the elements left, and this determinant is 100, 203 and 120. So this is the minor of element 2. This is again the determinant of order 3. Again we have to apply the same method. Let's decide that we will be using first row to evaluate this particular determinant. Now this m2 will be equal to 1 multiplied by its cofactor. Let's say it is a1 dash, and then 0 multiplied by its minor a0 dash, again 0 multiplied by a0 double dash. Now this dash and double dash are not differentiations. These are just the notations which we have used here for representing the cofactors of these elements. Now these two terms goes to 0 and we are left with 1 and 2 cofactor of element 1. Now the cofactor of element 1, this element 1, it lies in the first row and first column. So this is the A11 element. So in this case, we will be having minus 1 raised to power I plus j. This factor will be minus 1 raised to power 2. This is 1. So in this case, for element 1, the minor and the cofactor would be same. So A1 dash will be M1 dash, where M1 dash is the minor of this element 1. So we have to find out this minor of first element. So for that, this first element lies in first row and first column. So we are deleting the first row and the first column from the minor, this, and we will be getting again a determinant of order 2, that is 0, 2, 2, 0. This is the minor of this element 1, and this will be 0 minus 6 minus 6. So we get here m1 dash as minus 6. Now as m2, that was 1 multiplied by m1 dash, here we have find out m1 dash as minus 6. So this m2 comes out to be minus 6. And from here a2 is equal to plus m2, we get the cofactor of this element 2 would be minus 6. I hope फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का जो भी मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ी सी लेंदी है. द फॉर्मूला इज सेम, द मेथड इज सेम, द मेथड टू एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, वही सेम मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में. जस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है. जस्ट प्रैक्टिस इट आउट, एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So now our last element, that is 3, and we have to find out the minor of the element 3. We have to find out M3. So this element 3, because we have chosen the first row, so this element 3, we are talking about this element. Now this element 3, because it is the determinant of order 4, so it is lying in the first row and the fourth column. So what we will do is, we will delete this first row and the fourth column here, and we will get another determinant 102, 201 and then 121. This is the determinant which is going to be the minor of element 3. Now M3 जो है वो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसे इवेलुएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी रो या कौन सी कॉलम का यूज कर रहे हैं. लेट हम यहाँ पर सेकेंड कॉलम का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग मोर जीरोस, तो हम सेकेंड कॉलम का यूज अगर करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. M3 वुड बी 0 multiplied by the cofactor of this 0, which I am representing as a0 dash, added with another element 0, यहाँ पर ये second 0, multiplied by a0 double dash, and then added with a third element 2 multiplied by its cofactor. Because यहाँ पर ये जो दो टर्म्स हैं, दिस विल गो टू 0, तो M3 वुड बी ट्वाइस ऑफ A2, where 2 is this element. तो यहाँ पर इस 2 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है. उसके लिए, बिकॉज दिस 2 एलिमेंट इट लाइज इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो दिस इज द A32 एलिमेंट. और A32 एलिमेंट के लिए दिस फैक्टर minus 1 raised to power I plus j, it will become what? It will be minus 1 raised to power 3 plus 2. This will come out to be minus 1. So this element 2 के लिए क्या होगा कि A2 will be negative of minor of 2. अब हमें इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है. For that we will delete this third row and the second column, because this is the A32 element.
तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, देन वी विल गेट अनदर डिटर्मिनेंट विच इज 1 2 2 1. This determinant is the minor of element 2 here, m2. So this will come out to be 1 minus 4, that is minus 3, and from here we will get a2 as minus 3. तो इस a2 की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट अप करनी है, then we will get m3 as 2 into minus 3. This will be minus 6. So here we got m3 as minus 6. m3 अगर minus 6 है तो a3 would be minus of m3. This would be minus into minus 6 and 6. तो यहाँ से a3 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई. This is a1 not a3. तो यहाँ पर a0, a1, a2 and a3 इन सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की and we have to put this in this equation. So the determinant of a would finally be, ये टर्म तो जीरो हो गई, and this is 1 multiplied by a1 is 1, 2 multiplied by a2 that is minus 6 and plus 3 multiplied by a3 that is 6. इसे हम evaluate करेंगे, this would be 1 minus 12 plus 18, this will come out to be 7. This is your answer. यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ी सी लेंदी है, बिकॉज यहाँ पर जब भी हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी अगेन अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, एंड ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने पड़ रहे हैं एलिमेंट्स के, तो इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, बट द मेथड इज वेरी इजी. अ फ्यू मिनट्स बिफोर वी स्टडीड अ मेथड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. तो अभी तक जो भी मेथड हमने स्टडी किया वो एक जनरल मेथड है डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, और उस मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. बट स्पेसिफिकली अगर हम ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज नोन एज रूल ऑफ सार्स. जो मेथड अभी तक हमने डिस्कस किया दैट वाज द जनरल मेथड, उससे भी हम यूज कर सकते हैं ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, बट एक और मेथड है ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज द रूल ऑफ सार्स. मेन थिंग इस मेथड की ये है कि ये सिर्फ ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स पे ही एप्लीकेबल है. दिस मेथड वी कैन नॉट अप्लाई इट फॉर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर मोर देन 3. तो ये चीज यहाँ पर नोट करनी है, जब भी हम सार्स रूल अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर 3 है या फिर नहीं. नेक्स्ट थिंग, अभी तक जो मेथड हमने यूज किया उसमें हमने सिंपली एक रो या एक कॉलम का यूज किया डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, बट रूल ऑफ सार्स में हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल्स का यूज करेंगे. और डायगोनल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ली A जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे एंड इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट थिंग जो हमें रूल ऑफ सार्स को अप्लाई करने से पहले फाइंड आउट करनी है दैट इज कि जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज ऑर्डर 3 और नॉट. नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, ये जितने भी कॉलम्स हैं इनको एज इट इज हमें रीराइट करना है. जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम था उसे हमने रीराइट कर दिया, फिर सेकेंड कॉलम एज इट इज उसके बाद लिखा एंड फिर थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम के बाद लिखा. ये अरेंजमेंट एज इट इज यहाँ पर मैंने कॉपी कर दी. उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है इन्हें थर्ड कॉलम के बाद फिर से लिखना है. जैसे ये पूरी अरेंजमेंट मैंने लिखी, उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम था मैंने फिर से राइट डाउन किया एंड सेकंड कॉलम उसके बाद फिर से लिख दिया. इस तरह से हमारे पास 5 कॉलम्स हो गए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पर जो फर्स्ट रो है सबसे पहले फर्स्ट रो की हेल्प से डायगोनल्स फॉर्म करने हैं. इस फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, फिर a22 एलिमेंट, फिर a33 एलिमेंट, यहाँ से ये एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है उससे भी एक डायगोनल फॉर्म होगा. डायरेक्टली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जो हम जाएंगे तो a12, a23, a31 ये एक डायगोनल हमारे पास बना. देन a13 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक डाउनवर्ड डायगोनल हमें मिलेगा, a13, a21 एंड a32. इस तरह से हमारे पास फर्स्ट रो की हेल्प से 3 डायगोनल्स बनेंगे, इस तरह से शोन बाय पर्पल लाइंस. 3 डाउनवर्ड डायगोनल्स बने. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें थर्ड रो लेनी है. इस थर्ड रो में भी 3 एलिमेंट्स हैं तो इससे भी हमें 3 डायगोनल्स मिलेंगे, अपवर्ड डायगोनल्स.
तो थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट देखें तो A31 एलिमेंट, A22 एलिमेंट एंड A13 एलिमेंट. This forms first upward diagonal. Then from the second element of the third row, we are getting another diagonal, that is A32, A23 and A11. Similarly, जो थर्ड एलिमेंट होगा रो 3 का, उससे हमारे पास एक और अपवर्ड डायगोनल बनेगा which is shown by this green line. तो यहाँ पर 3 डाउनवर्ड डायगोनल हमारे पास बने एंड 3 अपर डायगोनल्स बने. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट होगा? जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले डाउनवर्ड डायगोनल में, उन सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल हमें फर्स्ट एलिमेंट से मिला, तो इस डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं A11, A22 एंड A33, उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है. देन सेकेंड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें मल्टीप्लाई करने हैं, एंड देन थर्ड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हम सबसे पहले डाउनवर्ड डायगोनल्स की बात करें तो डाउनवर्ड डायगोनल्स में हमें 3 डायगोनल्स मिले. तीनों डायगोनल्स में जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है एंड देन एड अप करना है. उसके बाद हमारे पास अपवर्ड्स डायगोनल है, 3 अपवर्ड्स डायगोनल है. ठीक है, फर्स्ट अपवर्ड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है. देन सेकेंड अपवर्ड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, एंड देन थर्ड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है. एंड जो 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 अपवर्ड डायगोनल्स, उन्हें हमें एड अप कर देना है. देन हमें क्या करना है, लोअर डायगोनल में जो भी सम मिला उसमें से हमें अपर डायगोनल के सम को सबट्रैक्ट करना है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जनरल मैट्रिक्स की बात करूं तो मेरे पास 3 अपवर्ड्स एंड 3 lower diagonal elements find out with. First upper diagonal is this A11, A22 and A33 elements से मेरे पास first upper diagonal मिला. तो मैं क्या करूंगी, इस first upper diagonal में जितने भी elements हैं A11, A22 and A33, उन्हें क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी. A11 multiplied by A22 multiplied by A33. Then जो second diagonal है, this is the second diagonal. इस सेकेंड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी. अभी मैं सबसे पहले डाउनवर्ड डायगोनल यानी कि लोअर डायगोनल की बात कर रही हूँ. तो लोअर डायगोनल के केस में सेकेंड डायगोनल जो मेरे पास मिला उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ. दिस विल बी A12, A23 एंड A31. देन वी हैव द थर्ड लोअर डायगोनल. अब इस थर्ड लोअर डायगोनल में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है. A13 एंड A21, A32, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगी. जितने भी लोअर डायगोनल हमारे पास बने उनसे मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आए, 3 प्रोडक्ट्स आए, और इन 3 प्रोडक्ट्स को मैंने एड अप कर दिया. सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स लेके फिर ऐड करना है, बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था. बस यहाँ पर हम डायगोनल्स की हेल्प ले रहे हैं, रोज या कॉलम्स डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं. लोअर डायगोनल्स यूज करने के बाद हमें अपर डायगोनल्स पे जाना है. यहाँ पर 3 अपर डायगोनल्स हमें मिल रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट अपर डायगोनल विच वी आर गेटिंग. तो इस फर्स्ट अपर डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. देन आई विल गेट A31, A22 एंड A13. इन तीनों एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. देन मेरे पास सेकेंड अपर डायगोनल है. तो सेकेंड अपर डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास एक प्रोडक्ट मिलेगा. तो द सेकेंड अपर डायगोनल कंसिस्ट ऑफ दिस A32, A23 एंड A11. इन सभी एलिमेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है. A32, A23 एंड A11. देन वी हैव द थर्ड डायगोनल. थर्ड अपर डायगोनल में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, A33, A21 एंड A12. इन सभी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. A33, A21 एंड A12. ये 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास आए. इन तीनों प्रोडक्ट्स को मुझे ऐड करना है. अब मुझे क्या करना है, लोअर डायगोनल से ये जो टर्म मिली मेरे पास उसमें से मुझे अपर डायगोनल वाली टर्म को माइनस कर देना है, एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट विच इज ए डिटर्मिनेंट. रूल को समझने के लिए हम लोग फिर से कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे. द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज we have a determinant p which we have to expand using the rule of Sarrus. तो rule of Sarrus यूज करने से पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है. वो क्या कि जो भी डिटर्मिनेंट हमें गिवन है वो ऑर्डर 3 का है या फिर नहीं.
इस डिटर्मिनेंट में देखें तो वी हैव 3 rows and 3 columns. So this is the determinant of order 3. Because it is the determinant of order 3, that is why we can easily apply the rule of Sarrus. तो कंडीशन हमने चेक कर ली. सेकेंड स्टेप इज हमें क्या करना है, इस पूरी अरेंजमेंट को एज इट इज कॉपी करना है. दैट मीन्स कि जो फर्स्ट कॉलम है उसे मैं फिर से यहाँ पर लिखूंगी 2 1 3. देन आई राइट द सेकेंड कॉलम एज इट इज 3 5 0 एंड देन द थर्ड कॉलम 4 3 5. उसके बाद हमें क्या करना है, बिकॉज वी हैव टू फॉर्म डायगोनल्स, तो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट कॉलम है एंड जो सेकेंड कॉलम है उन्हें फिर से कॉपी करना है आफ्टर द थर्ड कॉलम. तो थर्ड कॉलम के बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम लिखना है, दैट इज 2 1 एंड 3. फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम लिखेंगे, दैट इज 3 5 0. नाउ हाउ डू वी फॉर्म द डायगोनल्स, बिकॉज इट इज अ 3x3 डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर 3 लोअर डायगोनल्स बनेंगे एंड 3 अपर डायगोनल्स बनेंगे. तो जो फर्स्ट रो होगी उससे हमें 3 लोअर डायगोनल्स मिलेंगे एंड द थर्ड रो विल गिव अस द अपर डायगोनल्स. तो यहाँ से अगर मैं लोअर डायगोनल्स फॉर्म करूं, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, यहाँ से ये डाउनवर्ड एरो से हमें एक डायगोनल मिल गया. लोअर डायगोनल इफ वी राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट लोअर डायगोनल which is 2 5 and 5. ये फर्स्ट लोअर डायगोनल हमें मिला फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, की हेल्प से हम सेकेंड लोअर डायगोनल फॉर्म करेंगे. दिस इज containing 3 elements 3 3 and 3. यहाँ पर 3 3 and 3. This is the second lower diagonal. And then using the element 4 which is the third element of first row, इनकी हेल्प से मुझे थर्ड लोअर डायगोनल मिलेगा. दिस इज हाउ गेट द थर्ड लोअर डायगोनल एंड इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 4 1 and 0. तो इस तरह से मेरे पास 3 लोअर डायगोनल्स आ गए एंड यूजिंग द थर्ड रो we will get 3 upper diagonals in the similar manner. Now we will use the third row. First element of third row is 3. इस 3 से हमें diagonally upwards जाना है. Then we will get this first upper diagonal 3 5 and 4. This is the first upper diagonal. उसके बाद second upper diagonal मुझे second element से मिलेगा, second element of third row. तो ये हो गया मेरा second element. इससे upwards diagonally अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास एक सेकेंड अपर डायगोनल मिलेगा which will contain 3 elements which are 0 3 and 2. Then जो थर्ड एलिमेंट है थर्ड रो का 5, उसकी हेल्प से मैं डायगोनली अपवर्ड्स जाती हूँ, तो मेरे पास थर्ड अपर डायगोनल मिलेगा which will consist of elements 5 1 and 3. हमें 3 लोअर डायगोनल्स मिले. तीनों डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट्स थे उन्हें मल्टीप्लाई करना है एंड देन एड अप करना है. उसके बाद 3 अपर डायगोनल्स मिले, उनमें भी सेम चीज करनी है, तीनों में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके एड अप करना है. देन लोअर डायगोनल से जो भी हमें रिजल्ट मिला उसमें से मुझे अपर डायगोनल का रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले लोअर डायगोनल्स के केस में देखते हैं क्या होगा. लोअर डायगोनल केस में जो फर्स्ट डायगोनल है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2 5 5, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 multiplied by 5 multiplied by 5. Then जो सेकेंड डायगोनल है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं 3 3 3, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 multiplied by 3 multiplied by 3. एंड देन जो थर्ड डायगोनल है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है. देन आई विल गेट 4 multiplied by 1 multiplied by 0. ये 3 प्रोडक्ट्स मुझे मिले, इसे मुझे एड अप करना है. मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स को एड अप कर दिया. ये लोअर डायगोनल के केस में जो भी रिजल्ट मुझे मिला वो ये था. उसके बाद अपर डायगोनल के केस में भी सेम यही चीज मुझे करनी है. जो फर्स्ट अपर डायगोनल है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 3 5 and 4, उन्हें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. फिर इसे मुझे ऐड करना है किसमें, सेकेंड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे 0 multiplied by 3 multiplied by 2. फिर इसमें थर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऐड अप कर देंगे, तो 5 into 1 into 3. तो 3 अपर डायगोनल से मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिले, उन तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड अप कर दिया
तो मेरे पास अपर डायगोनल के केस में एक रिजल्ट मिला। अब मुझे क्या करना है, लोअर डायगोनल में जो भी रिजल्ट मिला उसमें से अपर डायगोनल का रिजल्ट सबट्रैक्ट कर देना है, एंड इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगी देन आई विल गेट द डिटर्मिनेंट बी। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ पर 5 5 जा 25 50 एंड दिस विल बी 27, दिस विल बी 0। इसमें से मुझे सबट्रैक्ट करना है 60 प्लस 0 प्लस 15। तो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2। तो इस तरह से हम सार्स रूल का यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स टेक अप अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रूल अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि क्या जो भी डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है वो 3 ऑर्डर का है या फिर नहीं है। इस डिटर्मिनेंट में देखें तो इसमें 3 रोज हैं एंड देयर आर 3 कॉलम्स हियर, सो दैट मींस दैट दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड वी आर एबल टू अप्लाई द रूल। तो अब रूल में क्या करना है, ये जो भी अरेंजमेंट मुझे दी गई है इसे एज इट इज मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम को फिर से कॉपी करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है एंड जो सेकंड कॉलम है उन्हें फिर से राइट डाउन करना है आफ्टर द थर्ड कॉलम। तो इस थर्ड कॉलम के बाद मैं फर्स्ट कॉलम फिर से लिखूंगी दैट इज 1 2 3। फिर फर्स्ट कॉलम के बाद दोबारा से मुझे सेकंड कॉलम लिखना है दैट इज 4 5 6। तो यहाँ पर हमें 5 कॉलम्स मिले। इन 5 कॉलम्स की हेल्प से हमें डायगोनल्स बनाने हैं। 3 अपर डायगोनल्स बनेंगे एंड 3 लोअर डायगोनल्स मिलेंगे। जो फर्स्ट रो होगी उससे मुझे लोअर डायगोनल्स मिलेंगे एंड द थर्ड रो विल गिव मी द अपर डायगोनल्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 1। डायगोनली मुझे डाउनवर्ड्स जाना है तो मेरे पास एक डायगोनल मिलेगा 1 5 एंड 4। तो लोअर डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लोअर डायगोनल मुझे मिला 1 5 एंड 4 विच इज द डाउनवर्ड डायगोनल। उसके बाद फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वहां से मुझे डाउनवर्ड्स जाना है तो मेरे पास सेकंड डाउनवर्ड डायगोनल मिलेगा विच इज कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 4 3 एंड 3। तो इस तरह से मुझे सेकंड लोअर डायगोनल मिला। देन थर्ड लोअर डायगोनल कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो फर्स्ट रो की थर्ड एलिमेंट है वहां से मुझे डाउनवर्ड्स डालना है डायगनली। तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स आएंगे 2 2 6 एंड दिस विल फॉर्म द थर्ड लोअर डायगोनल। यहाँ पर 3 लोअर डायगोनल्स आ गए मेरे पास एंड देन आई हैव टू फाइंड आउट द 3 अपर डायगोनल्स व्हिच विल फॉर्म यूजिंग द थर्ड रो। तो थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 वहां से मुझे अपवर्ड्स जाना है डायगनली। तो मेरे पास एक अपवर्ड डायगोनल मिलेगा दिस विल बी 3 5 and 2। दिस इज द अपर डायगोनल, फर्स्ट अपर डायगोनल। सेकंड अपर डायगोनल के लिए मैं क्या करूंगी, A32 एलिमेंट लूंगी, वहां से मुझे डायगोनली अपवर्ड्स जाना है तो मेरे पास 6 3 and 1 नेक्स्ट डायगोनल मिलेगा एंड देन फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट 4 we will go upwards and we'll find out the last diagonal that is 4 2 and 4। तो मेरे पास 3 अपर डायगोनल्स एंड 3 लोअर डायगोनल्स मिले। अब मुझे क्या करना है, इन सभी के जो भी डायगोनल्स हैं के एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके एड अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो लोअर डायगोनल्स के केस में जो फर्स्ट लोअर डायगोनल है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बी 1 multiplied by 5 multiplied by 4। इसमें मुझे सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना एड अप करना है। सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे दिस विल बी 4 into 3 into 3 एंड इस प्रोडक्ट को मैं फर्स्ट प्रोडक्ट में एड अप कर दूंगी। उसके बाद जो थर्ड डायगोनल है उसके 3 एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं एंड दिस प्रोडक्ट विल अगेन बी एडेड विद द प्रीवियस 2 प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास लोअर डायगोनल के केस में ये रिजल्टेंट आया। अब अपर डायगोनल के केस में सेम रिजल्टेंट मुझे लेना है, वो कैसे मिलेगा, फर्स्ट अपर डायगोनल के केस में जो भी एलिमेंट है उनको प्रोडक्ट कर देते हैं दिस विल बी 3 into 5 into 2। इसमें मुझे एड अप करना है सेकेंड अपर डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो दिस विल बी 6 into 3 into 1। 6 into 3 into 1 को मैं प्रीवियस प्रोडक्ट में ऐड कर दूंगी। Then I have to add the product of third diagonal 4 into 2 into 4 इसे मैं
एडअप कर दूंगी तो मेरे पास अपर डायगोनल का एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, लोअर डायगोनल में जो भी रिजल्टेंट मिला उसमें से मुझे अपर डायगोनल का रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करना है। लोअर डायगोनल्स के केस में मुझे जो भी रिजल्टेंट मिला उसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 80। अपर डायगोनल के केस में भी मेरे पास 80 आंसर आया। नाउ वी विल पुट दीज टू इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर 80 माइनस 80, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ p which is coming out to be 0। तो इस तरह से सार्स रूल की हेल्प से हम लोग इजिली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दैट डिटर्मिनेंट वुड बी ऑफ ऑर्डर 3 ओनली। ये रूल हम अदर डिटर्मिनेंट्स के केस में यानी कि ऑर्डर 3 से हायर के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माइनर और कोफैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो रिकॉल किया और हमने ये देखा कि हम एक चेक बॉक्स की हेल्प से बहुत इजीली कोफैक्टर्स और माइनर में प्लस और माइनस का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने का जो जनरल प्रोसीजर है वो हमने देखा थ्रू द एग्जांपल्स। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द रूल ऑफ सार्स। इस रूल में हमने ये देखा कि ऑर्डर 3 के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, किस तरह से हमें इसमें प्रोसीड करना होता है, एंड देन वी यूज्ड सम ऑफ द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स we will catch up on the properties of determinant। determinants की कुछ properties स्टडी करेंगे जिनकी हेल्प से हम लोग determinant को बहुत easily find out कर सकते हैं। जैसे एक जनरल प्रोसीजर हमने फाइंड आउट किया डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, उसके बाद सार्स रूल की हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटर्मिनेंट्स की जिनकी हेल्प से बहुत इजीली डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। तो द थर्ड वे विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर दैट यू हैव टू ट्राई सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसी के बेस पर there are 5 problems which you have to solve on yourself. In the next lecture we will deal up with them. Till then try them out, and wherever you get the query just comment it down. Till then keep learning, keep practicing and stay tuned.